Let's do some questions of structure of atom so that it will be clear to us. First question, what is the number of the photons of light with a wavelength 4000 picometer? Pico means 10 की power minus 12, right? That provide 1 joule of energy. तो आपको E दिया हुआ है, आपको lambda दिया हुआ है, number of photons आपको find out करने हैं. So what you will write, E is equals to N H nu, right? And nu is equals to C by lambda. So what we can say E is equals to N, where N is the number of the photons which we are supposed to find it out. H is the Planck's constant, 6.626 into 10 raised to the power minus 34 into C is the velocity of the light, 3 into 10 raised to the power 8 by wavelength. Wavelength is 4000 picometer, pico means 10 की power minus 12, and energy is 1 joule, right? So now you can do it very easily, correct? ये इधर चला जाएगा यानी 4000 वाला, ये यहाँ चला जाएगा, and you will find out the n, that is the number of the photons, correct? Let's go for another one. A photon having the wavelength 4 into 10 raised to the power minus 7 meter strikes on a metal surface, the work function being 2.13 electron volt. So we will convert it into joule, that is 2.13 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19 joule. ठीक है, calculate what we are supposed to calculate the kinetic energy and the velocity. Do you remember the work function? Work function is that minimum work which we are supposed to do. So total energy ET is equals to work function plus kinetic energy, right? जो हमारा मेटल था, मेटल के सरफेस में जब हम लाइट डाल रहे थे तो ये एनर्जी जो आपने टोटल दी उसमें से कुछ एनर्जी होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए होगी, बाकी की जो एनर्जी होगी दैट विल बी यूज्ड फॉर द काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट? सो यानी पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी. तो एनर्जी हम कैसे निकालें? एनर्जी हम निकाल दें E is equals to H nu is equals to C by lambda. So E is equals to H की वैल्यू 6.626 into 10 raised to the power minus 34, ठीक है, into 3 into 10 raised to the power 8 by वेवलेंथ उसने दी हुई है 4 into 10 raised to the power minus 7. ये टोटल एनर्जी हो गई. ओके, नाउ दिस वन विल बी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन कितना है हमारा? वर्क फंक्शन है 2.13 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. दिस इज द वर्क फंक्शन, राइट? ये वर्क फंक्शन हो गया आपका, प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस है वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. सो यू विल फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? ये इट विल कम आउट टू बी, यहाँ पे इसको कर देते हैं 10 की पावर माइनस 7, ऊपर गया 10 की पावर प्लस 7, 7 7 14 और एक 15, 15 प्लस का 15 और माइनस का 34, प्लस 15 एंड माइनस 34, 19 माइनस का 19, राइट? और फिर इसको 2 से काट दे, 2 3 जा 6, ओके, 2 2 जा 4, so 3 3 3 जा 9, 9 divided by 2 that is 4.5 approximately आ गया हमारा 4.5 into 10 raised to the power minus 19 minus this 2 into 1.6, it will be 3.4 into 10 raised to the power minus 19, right? So it will become approximately, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1.5 के करीब, है ना? 3.4 1 point something into 10 raised to the power minus 19 is equals to kinetic energy. And once you will find out the kinetic energy, ये kinetic energy आपको मिल गई तो अब आपको वेलोसिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्यों? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी आपको मिल चुकी है ना? वो वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ एम. एम क्या लोगे? होता है 9.1 into 10 raised to the power minus 31, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 into v square, राइट? सो इट विल बी, और v स्क्वायर का क्या कर दोगे? स्क्वायर रूट कर दोगे. सो आपके पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी, राइट? Now, what is the wavelength of the light emitted? What is the wavelength of the light emitted when an electron in a hydrogen atom undergoes transition from n is equals to 4 से n is equals to 2? यानी वो जब ऊपर से नीचे जाता है तो कितना अमाउंट का एनर्जी लिबरेट आउट होता है? तुम्हें रेबक्स कांस्टेंट, रेबक्स फॉर्मूला याद है? वेव नंबर किसके बराबर था? 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, ठीक है. n2 की वैल्यू क्या हो गई? n2 हो गया हमारा n2 हमारा फोर्थ से सेकंड में जा रहा है
तो n1 की वैल्यू हो गई हमारी 2 और n2 की वैल्यू हो गई हमारी 4। ठीक है, इससे क्या निकाल देंगे, वेव नंबर निकल जाएगा। सो वेव नंबर which is equals to the inverse of wavelength, right? This one will be equals to 109,677 by ठीक है, ये जो वेव नंबर निकला, वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ। तो इसको रिवर्ट कर देना, इसको रिवर्ट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा, वेव लेंथ निकल जाएगा। गॉट इट, क्लियर है? ठीक है। Now, what is the maximum number of emission line when excited electron of hydrogen atom in N6 drops to the ground state? Okay, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, number of lines, write down, number of lines is equals to n minus 1 by 2। ठीक है, तो कहाँ से ड्रॉप कर रहा है, ये ड्रॉप कर रहा है 6 से ड्रॉप कर रहा है। सो वी विल से 6 minus 1 that is 5 divided by 2। तो कितना आ गया, it will come out to be 15। So 15 lines will be emitted. Okay, now the energy, the electron energy in the hydrogen atom is given by this one। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको भी पता है ना। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यानी हमें कहाँ से करना है, N2 से, और भेज देना है कहाँ पे, कहाँ भेज दोगे, इनफाइनाइट में, राइट? सो E2 will be equals to minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18 divided by, सेकेंड शेल से भेज रहे हैं तो डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, राइट? और तुम्हें हमने कराया था कि इनफाइनाइट पे कितना होता है, 0, राइट? सो एनर्जी जो मेरी, व्हाट विल बी द एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी E इनफाइनाइट माइनस E2, राइट? ये हो गया मेरा 2 to the 4। सो इट विल कम आउट टू बी, कितना आ गया ये हमारा, ये आ गया हमारा 5.45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल। अब अगर ये चीज आ चुकी है, मेरे पास एनर्जी आ चुकी है, तो अब हमें निकालनी है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, राइट? अब E है आपके पास 5.45 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19, H है आपके पास 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34, C है आपके पास 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी ये जो निकलेगी दिस विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, राइट? ठीक है, सो ये लैम्डा इधर चला जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, एंड देन यू आर सपोज टू कैलकुलेट इट। जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट इज यूज्ड फॉर दिस ट्रांजिशन। ओके, नाउ एन एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक मास इज 81। एटॉमिक मास, पहली बात तो एटॉमिक मास किसका बना रहता है, मास जो है हमारा वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, राइट? कंटेन्स 37% मोर न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन को अगर मैंने x ले लिया तो मेरे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 31.7% ऑफ x एक्स्ट्रा है, प्लस x, राइट? ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0.317, दैट इज 1.317, राइट? आ गया ये क्या आ गया, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए। अब एटॉमिक मास कितना था हमारा, 81, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने x माने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 1.317x। सो नाउ यू कैन फाइंड आउट द x की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी, राइट? ये हो गया तुम्हारा 2.317x, है ना? सो ये हो गया तुम्हारा 81 डिवाइडेड बाय 2.317 इज इक्वल्स टू x, व्हिच इज nothing but it is number of proton, and you know very well that number of the proton are the identity of an element, यानी जो number of proton निकलेगा वही element होगा, right? तो ये जब इसे solve out करोगे तो it will come out to be around 34.9 which is approximately 35, और 35 atomic number किसका होता है, ब्रोमीन का, right? So the element is this one. Got it? Now the velocity associated with a proton moving in a potential difference of 1000 volt is 4.37 into 10 raised to the power 5 meter per second. If a hockey ball of mass is moving with this velocity, अच्छा, तो velocity हमें दी हुई है, mass दिया हुआ है, calculate the wavelength. So lambda is equals to, जल्दी बोलो, h by mv, right? So calculate the wavelength, तो हमें निकालनी है h 6.626 into 10 raised to the power minus 34, मास कितना है 0.1 kg है, वेलोसिटी कितनी है 4.37 into 10 raised to the power 5, राइट? सॉल्व आउट कर लोगे,
जो सॉल्व आउट करोगे दैट विल बी द वेवलेंथ व्हिच इज एसोसिएटेड विद इट। ध्यान रखना ये हॉकी बॉल है, क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और हॉकी बॉल माइक्रोस्कोपिक नहीं है, इसलिए विल बी कैसी आएगी, टू स्मॉल, बहुत छोटी आएगी, ठीक है, टू बी डिटेक्टेड बाय एनी मीन्स, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। नेक्स्ट, हाउ मेनी सबशेल्स दे आर एसोसिएटेड विद n इज इक्वल्स टू 4। तो n 4 है, तो सबशेल्स मेरे l कितना होता है, फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, यानी 0 1 2 एंड 3, राइट। सो हाउ मेनी सबशेल्स, कितने सबशेल्स हैं, तो 4 सबशेल्स है मेरे, 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। Now the second part that how many electrons will be present having the ms value half। ms value half है, minus half है, so इसमें तुम्हें पता है 2 6 10 and 14, half will have a minus value and half will have plus value, तो ms की वैल्यू माइनस हाफ वाले इसमें सिर्फ 1 होगा, इसमें 3 होंगे, इसमें 5 होंगे और इसमें 7 होंगे, so it will be 15 और एक 16, right। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, there will be 16 electrons having the value ms minus half, okay। Which orbit will experience larger effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जब मेरा प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो नो डाउट ये प्रोटॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, जितनी पास में होगा, जितना छोटा शेल होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो 2s और 3s में कौन जीत जाएगा मेरा, 2s, राइट, ठीक है, सेकेंड शेल पास है, राइट, प्रोटॉन के विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। 4d और 4f में नो डाउट 4d पहले आएगा, है ना, इसमें उसने हमारा शेल चेंज कर दिया था, इसमें उसने हमारा सब शेल चेंज कर दिया। 3p एंड 3d में कौन हो जाएगा, 3p, राइट, p इज द इनरमोस्ट शेल, जो जितना अंदर होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा। लास्ट, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। एल्यूमिनियम कितना होता है हमारा, एल्यूमिनियम 13 है, सिलिकॉन कितना होता है 14, राइट, यानी ये है मेरा p3, ये है मेरा p4, right। They are present in the 3p orbital. Which electron will experience more effective charge from the nucleus? अब बताओ भाई, प्रोटॉन जो है वो भी तो सेम ही होंगे, यानी इसमें कितने होंगे, 13 प्रोटॉन होंगे, जबकि इसमें 14 प्रोटॉन होंगे, राइट। सो 14 प्रोटॉन जो है वो 3p के जो 4 इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे करेंगे, ज्यादा तेजी से टाइटली होल्ड करेंगे, खींचेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इज मोर, राइट, क्योंकि शेल दोनों का सेम है, 3p उसका भी है 3p इसका भी है, तो इसलिए यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले में हमने देखा था कि या तो हमारा शेल डिफरेंट था या शेल सेम था लेकिन सब शेल डिफरेंट था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी वर सेइंग कि जो पास है वो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, 3p है, ये भी 3p है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3p की वजह से सेम है। सो नाउ इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। सो यहाँ पे जो है मेरे 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को करेंगे, जबकि यहाँ पे 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन करेंगे। सो the effective nuclear charge will be more in the case of silicon as compared to the aluminum, okay। तो फिर अब next class में we will start with a new chapter that is the periodic properties, okay। Till then, love you, bye।